Okay, so today we will see one question on race. I'll just upload the PDF. So how's your preparation going? It's fine now. Thank you. So are you doing this? Are you practicing daily? Is it improving? Okay, all right. Yeah, tomorrow we have the free mock from 10 to 1, 10 a.m. to 1 p.m. I'll also share the link again today. Okay, those who still haven't enrolled, do that. And then you have this one, the analysis class. Okay, so after you write the 3 hours mock, we will straight away have this analysis class, which is starting from 2. I think if you have already enrolled, you would have got the schedule. It's starting from 2 p.m. 2 to 3 will be DILR. I'll be taking that. Then from 3:10 to 4:10 is quant. I think Praveen Tyagi sir is taking it. And then from 4:15 you have VARC 1 hour. Okay, let's start then. So the first set is no, this one is done. This one. The finals of a 4 into 100-meter relay race of national championship or for 4 teams: Tamil Nadu, Sikkim, Jharkhand, and Jammu and Kashmir. Okay, so it is some question on, you can say, games, but I think also puzzle is involved here because there are 16 athletes who are taking part in this. So it's a relay race. You know what is a relay race? So if even if you don't know, complete information is provided here. Okay, even if somebody have no idea of relay race, it's not like they would leave you to, like, they would not assume that you would know about it. Okay, still they would provide you with all the details required. Like you can see here, the race consists of 4 laps. In each lap, one representative of each state ran with the baton in his hand. The runner in any lap has to carry the baton for the entire lap before passing it to his team member running for the next lap. Okay, so it is something like this. So if this is the race path, okay, this is the starting line and this is the ending line, then what happens? This is divided into 400 meters path. 400 meters path. What happens? One person, he runs with a baton, so some block in his hand. Okay, till this point. In this point, already the other person from the same team is waiting. Okay, so as soon as this guy will hand over the baton to the other guy, only then he can start running from the second point. Again, he'll go to the third point where already a third person is waiting, and again he'll pass on the baton, and only then this third person can start running, like that, and finally the fourth person, and then the ending point. Okay, so there are total 16 people involved because there are total 4 teams involved. Okay, read the question. Those who have joined now, read the question quickly. So what you basically have to do is, the 16 names are given to you. Maybe you have to figure out that who was from which team, and who was the first person, second person, third person, and fourth person from each team. Okay, so it's a question on race, like game come puzzle as well. Okay, try it. It's a good question.
Hi everyone, those who have joined now. So try the question, we have just started. This is the first set. So it is something, some block like thing, okay, that have to be carried. So the first person carries it, and the second person can only start running from the same team when this baton is handed over to this person. So when this person reaches the first point and hands over the baton to the second person, only then the second person can start running. Similarly till the third point and then the final point. Okay. Okay, even if someone is a beginner and they think they are not completely prepared to do this level question, still you can try it. Don't think that cat level है तो नहीं होगा हमसे. ठीक है, just take it as a normal puzzle. जैसे कि कोई आपको कोई स्टोरी बता रहे हैं, उसमें ये हुआ और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. Just take it like it's the way you deal with it. ठीक है, उसको जिस तरह से लोगे, उसको सोचोगे कि वो डिफिकल्ट है तो नहीं हो पाएगा. उसको अलग तरीके से अगर देखोगे क्वेश्चन को तो सॉल्विंग पे बहुत फर्क पड़ता है. सो जस्ट ट्राई. ठीक है, होगा नहीं होगा दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. लास्ट ईयर पेपर, सी आई विल नेवर से यू कि बस इतना कर लो काफी है. ठीक है, क्योंकि कुछ भी काफी नहीं है. ठीक है, देर इज नो वर्ड लाइक इनफ इन DILR. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर. सो just keep practicing. Even if you practice like 2-3 sets on daily basis, abhi more than 6 months are there to go, which means कम से कम भी like 400 सेट्स आप कर सकते हो एग्जाम तक. 400 सेट्स. डेली 4 कर रहे हो, अगेन सी व्हाट आई एम सेइंग, 2-3 सेट दैट इज नॉट द लिमिट, दैट इज द स्टार्ट. ठीक है, किसी को उससे ज्यादा करना है तो जितना करोगे उतना फायदा है. सो आई ऑल्सो हैव लाइक आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू कि जैसे प्रैक्टिस से क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से. अगर सपोज 3 लोग हैं, ठीक है, एक ने बिल्कुल बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में जा रहे हैं, एक ने थोड़े 100-200 सेट्स प्रैक्टिस किए और तीसरे वाले ने 1000 सेट्स प्रैक्टिस किए. ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, जिसने 1000 सेट प्रैक्टिस किया ऐसा थोड़ी ना है कि उसका देखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा. नहीं आएगा. जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट विल स्टिल बी न्यू. इट विल बी न्यू टू ऑल दीज 3 पीपल. ओके, बट स्टिल क्या होगा, वेयर विल इट मेक द डिफरेंस. सो हो सकता है दिस गाय हु डिडंट solve at all, didn't practice at all, might be able to solve 1 or 2 sets in 1 hour duration. Okay, this other guy who had tried 100-200 sets will be able to do maybe 3. I don't think more than 3 will be possible if that's the range. And this guy who have solved 1000 sets, for him also all 8 questions are new. But what will happen, he might be able to solve more than 5 sets. So that's the thing, that's the difference. So I'll never tell you कि इतना practice कर लो काफी है. There is no thing like that. Do as much as you can. तो टाइमिंग पे फिर स्पेसिफिकली वर्क करो. मैंने बताया है वो कैसे करना है. टाइमिंग नोट डाउन करो. आप लोग देखते ही नहीं हो वॉच. एक एक क्वेश्चन पे कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. मैं तो रोज गाइड कर रही हूँ कि कैसे करना है. यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स. सो ट्राई इट विद अ टाइमर. जिन लोग को भी टाइमिंग का इशू है कि सॉल्व तो हो रहे हैं सेट्स पर टाइम के अंदर नहीं हो रहे,
तो क्या करना है, तो क्या करना है आपको, नोट डाउन करना है पूरे हफ्ते। नोट डाउन करो कि हर सेट को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हो। और कोई अगर ऐसा फंसने वाला सेट आ जाता है जो कि आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर दिया और फिर नहीं हो रहा है, प्लीज लेट इट गो। वो सेम सेट नहीं आने वाला है, उसको छोड़ दो, पूरा दिन उस पर मत बर्बाद करो। बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, you have to like plan your time. Every minute is important, now also and later also in the exam. Those 60 minutes are going to decide your future, so plan for those 60 minutes. Yes, Ashish. सिलेक्शन कैसे किया जाए, वो साहिल वो प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस करते वक्त भी इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर वही कोई अटकने वाला सेट आ रहा है तो उसको जाने दो। प्रैक्टिस में भी अगर आप वो जिद को अपने अंदर रखोगे, ठीक है, वो एक जिद है ना कि नहीं करना ही है, 5 मिनट वेस्ट हो गए, अब तो इन्वेस्ट, अब तो मतलब खत्म करना ही है, इसको आंसर आना ही चाहिए। तो वो आपसे आपसे जो खुद की वो जिद है, वो लड़ाई है, उसको आपको प्रैक्टिस के दौरान ही काबू में करना है। कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है इट्स फाइन, लेट इट गो। अगर 5 मिनट वेस्ट हो गए तो भी ठीक है, पर अब क्या होगा अगर मैं और 15 मिनट इस पे लगा दूं और तो भी ना हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो वो जो चीज है वो एग्जाम में जाके नहीं सीधा अप्लाई कर सकते हो। उसको ट्राई करो कि आप अभी से प्रैक्टिस करो। वाइल यू प्रैक्टिस, हैव दिस हैबिट ऑफ लाइक फिगरिंग आउट कि अच्छा ये सेट नहीं हो रहा, काफी टाइम दे दिया, नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट लेट इट गो। कम बैक टू इट लेटर, मे बी 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करो तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जो पहले नहीं दिख रहा था। सेम लैब मीन सेम टीम से, सो ये मैंने समझाया है यहाँ पे। सेम लैब का मतलब है कि मतलब जो एक पाथ है फॉर वन टीम, तो एक टीम के चारों मेंबर्स चार यहाँ पे लाइंस पे खड़े रहेंगे। तो जब इसने ये एक लैब, फर्स्ट मेंबर ने एक लैब जब पार किया, तो फिर वो अपने सेकंड मेंबर को वो बैटन पकड़ाएगा और फिर वो भागना स्टार्ट करेगा। तो ये उसका सेकंड ऐसे लैब, दैट इज द लैब। लास्ट क्लू, Akram ran the same lap as Hari and belonged to the same country as Ekchand. Same, actually same state it will be. Same state as Ekchand. ओके, सो यानी कि अक्रम और एकचंद जो थे वो सेम टीम से थे, या तो तमिलनाडु या सिक्किम या झारखंड या जम्मू एंड कश्मीर, वो लोग सेम टीम से थे और उन्होंने सेम लैप रन किया। यानी कि इस लैप में, ये एक लैप जो है उसमें चारों टीम से चार लोग दौड़ रहे हैं ना। वन लैप इज बीइंग कवर्ड बाय 4 people, so that is what it means. Akram and Hari are from different states and they are covering the same lap, while Akram and Ekchand belong to same state. One second, I'll just refresh. Comments नहीं आ रहे. Good evening, Sarendra. All state teams started at same time or separately? No, it's at the same time. No, it's a race. So they will start at the same time. Third point, the lap in which Bittu ran was immediately before the lap in which Ganesh and Farooq ran. यानी कि गणेश और फारूक किसी एक ही लैप में थे और उसके बाद, no, immediately before the lap in which, अच्छा, Bittu was immediately before that lap. यूनिक सोल्यूशन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. एक सेकेंड, आई थिंक कुछ कमेंट्स छूट गए हैं. Okay, Ashish, you can join the conceptual course classes. You can either join the one starting today, ठीक है, एक कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है 9 to 10:30, and एक कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, that's the timing for that is 4:30 to 6. So whichever timing you are comfortable with, according to that you can join either of the batches. सेम चीज दोनों बैचेस में कराई जाएगी, बेसिक से DILR पूरा कवर किया जाएगा.
रिचा, क्वांट का थोड़ा सा अलग है। देखो, क्वांट में तो फिर फॉर्मूला ये सब आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। और ये डीआईएलआर अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये पजल है, इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हर हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें लगानी पड़ती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है। Yes, Junaid, games and tournament is still asked. Questions are here. 9:30. 9:30? No, it's 9 to 10:30 p.m. Okay, I'll start the poll. 1 minute. Let me see the answers. No, we don't have the complete solution. Okay, the table that you will get will be partially filled. Okay, let's see. First question. First question, mark your answer. So those who haven't completed or gets the wrong answer, for them we will see the solution after this. Okay, those who are done, mark your answers. अच्छा, एक second. Okay, 48% got it correct. The second one, mark your answer. %47 got the correct answer. Refresh करो, poll नहीं show हो रहा है तो. If Ganesh is from Jammu and Kashmir, who passed the baton to Ishwar? That's the third question. Who passed the baton to Ishwar? Options are Chandu, Ganesh, Farooq, and Naresh. Okay, mark your answer for the third one. Nahi, Nitesh, these free classes
ये बहुत ही लिमिटेड होती है एवरी मंथ. अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेना अलाउड है. देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू टेक इट द एंटायर मंथ, एटलीस्ट दिस मंथ. नेक्स्ट मंथ का भी अभी से आई कांट से. मुझे भी कमेंट्स आ नहीं रहे थे, अभी आए हैं. Okay, it's 40% correct. Next, last question. If one of the runners shared the initials of his name with the state's name, then who passed the baton to Akram? Mark your answer. नहीं, एक तो मैंने बता रही हूँ, जैसे कि एक आज से स्टार्ट है और एक 11th से स्टार्ट है, मंडे से. और दिस ऑल्सो अराउंड 40-45% इज करेक्ट. तो ज़्यादा लोगों का सही नहीं हो पाया, देखते हैं फटाफट. साहिल अभी भी लैग हो रहा है क्या? शुड आई रिफ्रेश? ट्राई पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स. ये सब में ही एक्चुअल कैट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है तो फिर. ओके, आई जस्ट रिफ्रेश वंस. ओके. द रनर इन एनी लैब, एक बार एक्सप्लेन करो. अच्छा ठीक है, मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बताया गया है देर आर, इट्स अ रेस. ठीक है, इट्स अ रेस जहाँ पे देर आर 4 laps because it's a relay race. So take it like this. This is lap 1, 100 meters. Lap 2, 100 meters. Lap 3, 100 meters. And lap 4, 100 meters. Okay, we'll take the different states that are participating: Tamil Nadu, Sikkim, Jharkhand, and Jammu and Kashmir. Tamil Nadu, Sikkim, Jharkhand, and Jammu and Kashmir. Aditya, wait, I'll reply that, okay? Okay. So did you understand the lap thing? How many people have doubt in the lap? ठीक है, रिले रेस क्या होता है? रिले रेस होते हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक बैटन कैरी करते हैं. ठीक है, और एक फर्स्ट बंदा जो होता है वो सिर्फ 100 मीटर जो है सिर्फ एक लैप जाएगा, 100 मीटर कवर करेगा. चारों एक साथ कवर करेंगे, 4 टीम्स है यहाँ पे, तो 4 लोग एक साथ फर्स्ट 100 मीटर्स जाएंगे. तो जब वो ये फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे, 100 मीटर्स के फिनिश लाइन पे, यहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग वेट कर रहे हैं. तो इनको क्या, वो लोग कब भागना स्टार्ट कर सकते हैं? जब ये लोग पहुंचेंगे तब नहीं, जब ये लोग अपना बैटन
जो है वो दूसरे रनर को, अपने टीम के दूसरे रनर को हैंड ओवर करेंगे, तब वो वहां से दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह वो सेकेंड लैप के जो 4 लोग हैं वो सेकेंड लैप कवर करेंगे। ठीक है, फिर जब वो अपने फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, वहां पे ऑलरेडी फिर से 4 लोग वेट कर रहे हैं थर्ड लैप पे। यहाँ पे फिर से 4 लोग वेट कर रहे होंगे, इनको वो बैटन देंगे और फिर ये भागना स्टार्ट करेंगे और जाएंगे फोर्थ लैप का स्टार्टिंग पे, जहाँ पे ऑलरेडी फिर से 4 लोग वेट कर रहे हैं। वो लोग अपना बैटन उनको देंगे और वहां से वो आगे जाएंगे, फिनिश लाइन यहाँ पे है। ठीक है, दैट इज व्हाट अ लैप मीन्स। ओके, क्लियर नाउ शिवम? ठीक है, तो अब लोकेश पास्ट, ठीक है, तो टोटल 16 नेम्स दिए हुए हैं, टोटल 16 नेम्स हमें इन 16 बॉक्सेस में फिल करने हैं। ठीक है, the runner in eventually the runners in the fourth lap who were the first, second, and third to cross the finish line won the gold, silver, and bronze medals respectively for their states. ठीक है, तो लोकेश passed the baton to बिट्टू। लोकेश कोई भी टीम में होगा और कोई भी लैप में हो, वो नहीं पता, पर लोकेश ने बिट्टू को बैटन पास किया था, यानी कि लोकेश पहले और फिर बिट्टू होगा। कहाँ पे होगा नहीं पता, अभी नहीं पता तो टेबल के बाहर लिख दो। नेक्स्ट क्लू, दिनेश रैन द सेम लैप एज ईश्वर एंड नरेश, यानी कि इन लोग जो भी लैप में हो, ये लोग एक ही लैप में, एक मतलब एक ही लाइन में होंगे, किसी भी एक लैप में होंगे ये तीनों। कौन है? दिनेश, ईश्वर एंड नरेश। दिनेश, ईश्वर एंड नरेश ran the same lab। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा लैब। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज ऑल द इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट ऑल द इंफॉर्मेशन टू visual clues। So first 2 clues are done। Next, the lap in which Bittu ran was immediately before the lap in which Ganesh and Farooq ran। ठीक है, this lap was just before the one in which Ganesh and Farooq ran। But Ganesh और Farooq इनके टीम में ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि क्या दिया हुआ है कि lap in which Bittu ran was immediately before the one in which Ganesh and Farooq ran। Now they can be in the same lap also, right? We don't know if Ganesh and Farooq are in the same lap or is in the same team, nothing, but just we know that Bittu cannot be in the last lap। इससे हमें ये पता लगा इस क्लू से कि बिट्टू जो है वो लास्ट लैप में नहीं हो सकता, क्योंकि बिट्टू के बाद भी कोई लैप था जहां पे गणेश और फारूक ने रन किया। क्लियर? Okay, next. Kareem passed the baton to Madhav, who passed it to the final runner of his team। यानी कि करीम लैप 2 में रहा होगा, करीम passed the baton to Madhav and Madhav passed it to the final runner। ठीक है, पर कौन सी टीम में ये लोग थे, that is not known again, that is not known। Next, Omar ran the same lap as Jatin and Parmeet। फिर से ये इस टाइप का क्लू हो गया। दिनेश, ईश्वर एंड नरेश had ran the same lap, और ये तीनों ओमार, जतिन एंड परमीत, ओमार, Jatin and Parmeet also runs the same lap, which can be obviously, which have to be different from those 3 people। Chandu passed the baton to Dinesh, who won the bronze for Sikkim। So यानी कि चंदू इधर रहा होगा, and Chandu passed the baton to Dinesh and Dinesh won the bronze for Sikkim। Dinesh won the bronze for Sikkim। Hi विशाल, क्या कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है? अभी तक वी डिडंट गेट एनी क्लू जो भी लाइक बहुत इनडायरेक्ट हो या फिर जिसको बहुत इंटरप्रेट करना पड़े, ऐसा कोई क्लू अभी तक आया नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल टिल नाउ। कुछ भी नहीं, मैंने कुछ यूज भी नहीं किया, कुछ समझाया भी नहीं। आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू विजुअल क्लूज एंड पुटिंग इट असाइड द टेबल। जो दिनेश एंड ईश्वर एंड नरेश आर इन लैब 4।
नहीं मैंने कब बोला? Okay, Dinesh. Okay, since Dinesh is here, now we know that Dinesh, Ishwar, and Naresh should be in the same lab. Right, correct. So हाँ, see, तो क्या होता है कि विजुअल क्लूज लिखने से यही फायदा होता है. तो मैं बीच बीच में उसको नहीं इंटरप्रेट करती हूँ क्योंकि अगेन इट कैन गेट कंफ्यूजिंग. इसलिए व्हाट आई डू इज आई गो टिल द लास्ट क्लू फर्स्ट. ठीक है, लास्ट क्लू तक जाते हैं, एक एक करके उसको पूरा लिख लेते हैं. उसके बाद मुझे पता है कि अब कोई भी क्लू मैंने मिस नहीं किया है, कोई भी क्लू मैंने स्किप नहीं किया है. सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट रीडिंग द पैसेज अगेन और मिसिंग आउट एनी क्लू. देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द एनालिसिस पार्ट. तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता. ठीक है, और अगर आप बीच बीच में ऐसे एनालिसिस करोगे तो थोड़ा सा जो है आप भूल सकते हो कि कहाँ पे था, कौन सा क्लू था, फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा. एंड यू डोंट हैव इवन अ सेकंड टू वेस्ट. यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग इट विद इन 10 minutes. ठीक है, नेक्स्ट where are we? हाँ, Chandu passed it to Dinesh. Okay, Bittu while running for Jharkhand passed his baton to another person who then passed it to Ishwar. तो ईश्वर, अच्छा ईश्वर हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि अब दिनेश लास्ट लैब में है एंड ईश्वर इज इन द सेम लैब एज दिनेश. ईश्वर विल आल्सो बी इन द लास्ट लैब. सो फ्रॉम दिस क्लू व्हाट डू वी गेट टू नो? Bittu is running for Jharkhand and passed his baton to another person who passes it to Ishwar. यानी कि बिट्टू कौन से लैब में है? बिट्टू is in lab 3 and Jharkhand. Okay, Bittu passes it to some person and that some person finally passes it to Ishwar. That's the clue. Also from this clue we can know that who passed it to Bittu? It was Lokesh. ठीक है, so किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क. नेक्स्ट लास्ट क्लू बचे. अक्रम ran in the same lab as Hari and belonged to the same state as Ekchand. So Akram and Ekchand is from the same state. Akram and Ekchand is from the same state and Akram ran in the same lab as Hari. So same lab यहीं पे लिख देते हैं इस क्लू को भी. Akram ran in the same lab as Hari. That's it. That's it. We don't have any clues. Now I don't have to worry about going ahead. Did I leave a clue? No, we have used no fourth one. Karim passed the baton to Madhav, who passed it to the final runner of his team. I wrote it somewhere, no? Here. Karim have to be in lab 2, Madhav have to be in lab 3. And we don't know who is in lab 4 and we don't know where they can be. Now they can be for either Tamil Nadu or Jammu and Kashmir. We have to figure that out. Okay, now what should be done? So we know that this Ganesh and Farooq, they have to be in the lab after Bittu, right? According to the fourth clue, the lab in which Bittu ran was immediately before the lab in which Ganesh and Farooq ran. Now, since we know Bittu ran in lab 2, which means Ganesh and Farooq have to run in lab 3. ठीक है, तो इस तीन में से कोई 2 positions are booked for Ganesh and Farooq. Am I clear? इस तीन में से कोई एक पोजीशन बुक्ड है फॉर गणेश एंड फारूक. तो एक ही पोजीशन बचेगी और इसमें से देखो सिर्फ 2 ही पोजीशंस बचे हैं. यानी कि जो उमार, जतिन और परमीत है जिनको एक ही लैब में होना है, दे कैन ईदर बी इन लैब 1 और लैब 2. ठीक है, अब पूरा एनालिसिस स्टार्ट करो और गो ऑन यूजिंग द क्लूज दैट यू हैव पुट इन द साइड एंड सॉल्व इट. Naresh is in the 4th lab of Jammu and Kashmir. Okay, why not Tamil Nadu? Because Karim is in 2. Okay, because Karim and Madhav have to be there, so it can even be it can even be Tamil Nadu or Jammu and Kashmir. No, for both of them, all the values are still empty. Yeah, okay, right. So since we know that Karim is in lab 2 also, okay, since we know Karim is in lab 2, तो lab 2 में already एक तो बिट्टू है और एक करीम, 2 लोग हो गए, सिर्फ 2 ही vacant places है. lab 3 में एक तो चंदू है और 2 कौन है? गणेश और फारूक, सिर्फ एक ही vacant place है.
लैब 4 में एक दिनेश है और एक ईश्वर है, सिर्फ 2 ही वेकेंट स्पेस है, यानी कि जो ओमार, जतिन और परमीत है जिनको सेम लैब में होना है, उनको कहाँ होना पड़ेगा? लैब 1. सो नाउ दे हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज लैब 1. ठीक है, ओमार, जतिन एंड परमीत आर इन लैब 1. बट वी डोंट नो हु कैन बी वेयर ना, वो नहीं पता. Akram and Hari. Yeah, Akram and Hari also have to be together. So they can be there in lab 2 or lab 4. Lab 4 also have 2 vacant places. And Akram and Ekchand were in the same, from the same state. फोर में नरेश आएगा वो तो ठीक है, पर तमिलनाडु के लिए आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए? ओके मनीष, मैं क्लियर कर रही हूँ, रुको, लैब 1 वाला डाउट मैं क्लियर करती हूँ, रुक जाओ. अच्छा ठीक है, लैब आप ये बता रहे हो कि लैब 4 में नरेश आएगा, इसीलिए अक्रम और एकचंद नहीं, अक्रम और हरि के लिए सिर्फ एक ही लैब बचता है, दैट इज लैब 2, राइट? अक्रम और हरि के लिए एक ही लैब बचेगा, दैट इज लैब 2, क्योंकि लैब 1 में आएंगे ओमार, जतीन और परमीत, तो वो फिल हो जाएगा पूरा. लैब 2 में अभी भी 3 एम्प्टी स्पेसेस है, नहीं 2 एम्प्टी स्पेसेस है, क्योंकि एक करीम लेगा यहाँ पे. ठीक है, लैब 3 में ऑलरेडी 4 लोग हो चुके हैं, कौन कौन? माधव, चंदू, गणेश एंड फारूक. लैब 4 में नरेश, दिनेश, ईश्वर, 3 लोग हो चुके हैं. ठीक है, राइट, करेक्ट. सो ये जो है अक्रम और हरि, उनको लैब 2 में आना है, पर वो कहाँ आ सकते हैं? तो अब ये करीम और माधव जो है वो यहाँ और यहाँ तो नहीं हो सकते, दे हैव टू ईदर बी फॉर तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, किसी एक में उनको होना है, बट वी डोंट हैव एनी क्लू अबाउट वो कहाँ पे हो सकते हैं. नहीं पता है ना, कुछ भी और क्लू तो है ही नहीं जहां से पता लग सके कि कौन किधर है एग्जैक्टली. बिट्टू, ईश्वर, हाँ वही, मतलब अगर इसके बाद नहीं समझ में आ रहा, हम लोग ने ऑलरेडी काफी कुछ पता कर लिया है. ठीक है, वी नो दैट नरेश इज इन लैब 4, वी नो दैट these 3 guys are in lab 1, we know that these 2 guys are in lab 2. ठीक है, एंड अक्रम एंड दिस आर इन फ्रॉम द सेम थिंग. ठीक है, बहुत कुछ पता चल गया. अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन इतने से आंसर हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following did not run the same lab as Chandu? Who among the following? So Madhav did run the same lab as Chandu. We can see Madhav is in lab 3 only with Chandu. Ganesh and Farooq are also in the same lab as Chandu, because they are also in the next lab, immediately next lab to Bittu. So since Bittu is in the second lab, Ganesh and Farooq both are in lab 3, which means the answer should be Akram. Clear? Those who have joined just now, please wait, we are starting the next question. Who among the following ran in the second lab? Second lab among Hari, Chandu, Farooq and Ekchand. So we know it's Hari. We know it's Hari in lab 2. Okay, Chandu is in lab 3 anyways. Farooq is in lab 3 anyways. And Ekchand can be in some other lab, but Hari have to be in lab 2. The answer is option A. Next question. If Ganesh is from Jammu and Kashmir, okay, if Ganesh is from Jammu and Kashmir, if Ganesh is here, then Farooq have to be where? So since if Ganesh is there, then Kareem and Madhav have to be here, which means Farooq will be from Jharkhand. Okay. Who passed the baton to Ishwar? So it will be Farooq who passed the baton to Ishwar. Option 3. And last question. If one of the runners share the initials of his name with the state name, then who passed the baton to Akram? Use the information from previous question. Okay, so Farooq have to be here only means
Who is left? Madhav. So who is the one who shares the initial with the state? There is no one from J here. Can it be Jatin and Jammu and Kashmir? Is that the only possibility? Nobody's name is starting from S. So Sikkim and one name is also not possible. Tamil Nadu, nobody's name is starting from T, I guess. So it's only one name that can be same. It's Jatin. Jatin can be from Jammu and Kashmir. If Jatin is from Jammu and Kashmir, Jatin will have to be here. Okay. What's the question anyways? Then who passed the baton to Akram? Where is Akram? Akram is in lab 2, that we know. So if Madhav is here, Kareem will have to be here. And where can Akram be? Question 2. Question 2 was who among the following ran in the second lap? हमने already figure out कर लिया ना कि अक्रम और हरी दो लोग थे जो लैब 2 से थे. Okay, yeah, it is given to us that Akram and Ekchand are from the same state. Okay, which means Akram can't be here because if Akram is here, then Ekchand cannot be from the same state. Which means Akram will be here and Ekchand will be here, right? So it have to be Akram. Who passed it to Akram? It have to be Jatin. Option D. Okay. थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है इफ गणेश इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, देखो अगर गणेश जम्मू एंड कश्मीर से होता है, अगर गणेश को हमने जम्मू एंड कश्मीर में पुट किया तो हमें पता है कि करीम और माधव को एक साथ होना था लैब 2 और 3 में. तो अब वो यहाँ तो नहीं हो सकते थे, यहाँ नहीं हो सकते थे, यहाँ नहीं हो सकते थे. दे हैड टू बी हियर, करीम एंड देन माधव. सो फारूक वाज लेफ्ट हियर. देयरफॉर द आंसर इज फारूक. हु पास्ड द बैटन टू ईश्वर? इट वाज फारूक. Because Jatin is passing the baton to Akram, no? Jatin is passing the baton to Akram. Yes, Vikrit, it is a cat level question. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था, इट वाज सॉल्वेबल विद इन 10 मिनट्स. यू जस्ट हैड टू फिगर आउट कि देयर आर नॉट इनफ क्लूज ये पता करने के लिए कि कौन एग्जैक्टली कहाँ पे है. जितना पता लग पाया उतना इनफ था टू सॉल्व द क्वेश्चन. This could be done easily within 10 minutes. Okay, if you just keep your mind open, if you just keep this possibility open कि you don't need the complete table to solve the questions. ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है? After a point, if you think there are no more clues to fill the table, just go to the questions. हाँ, in the first lap, ओमार, परमीत और जतिन है, वो ठीक है आपकी बात. पर ये एक कंडीशन दी हुई थी ना, if one of the runners shares the initial of his name with the state's name, तो वो सिर्फ जतिन हो सकता था. क्योंकि अगर आप देखो कि सिर्फ जातिन है, एस से किसी का भी नाम यहाँ पे है नहीं, है ना? एस से कोई भी नाम है? एस से कोई भी नाम नहीं है. तो सिक्किम और किसी का नाम मैच नहीं कर सकता था. तमिलनाडु, टी से किसी का भी नाम है? नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता था. सिर्फ जे से ये ऑप्शन पॉसिबल था, जे से क्योंकि एक नाम है हमारे पास एंड दैट इज जतिन. ठीक है, और पर जतिन झारखंड से नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि जतिन इज फ्रॉम लैब 1 एंड झारखंड ऑलरेडी हैव लोकेश इन लैब 1. Okay, so Jatin had to be from Jammu and Kashmir as per the condition, and Akram had to be here. Why? Kyuki Akram and Ekchand are from the same state that was given. If you put Akram here, then Ekchand तो इस स्टेट से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये प्लेसेस किसको लेने हैं? ओमार और परमीत को. तो एकचंद अगर अकरम को यहाँ रखते हो तो एकचंद और अकरम एक ही स्टेट से नहीं हो पाता, इसीलिए अकरम को यहाँ रखा. तो अकरम को किसने पास किया बैटन? इट वाज जातिन. it is given यार, दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है. The lap in which Bittu ran was immediately before the lap in which Ganesh and Farooq ran. Ganesh and Farooq ran in the same lap and Bittu ran before that. Yeah, we will start next set. ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसमें, 45 minutes हो गए. Okay, next set. See this one. या फिर एक वेन डायग्राम का सेट है, कौन सा देखना है?
ठीक है, वेन डायग्राम लेंदी होगा, कल देख लेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। ये देखते हैं अभी। Sheldon Cooper is burning the midnight oil in the chemistry laboratory. In the university, playing around with the chemicals, but being a theoretical physicist himself, he is not entirely sure about the compositions of the mixtures. He is currently having 5 beakers, having sufficiently large volumes of each 5 chemicals whose exact composition is known. Okay, so the chemicals are A, B, C, D, E, and the percentage of ether, boson, cyanide, and lye is known in these chemicals. Okay. All these 4 chemicals are made up of 4 compounds in different proportions as shown in the table. Okay. The name of the compounds are ether, boson, cyanide, and lye. Assume that no chemical reaction taking place upon mixing these compounds. Okay, so on mixing these compounds with each other, no chemical reaction is taking place. If they have mixed these in different proportions, right? So there is no chemical reaction taking place on mixing these compounds. That's the information. The first question is, Sheldon wants to make a chemical by mixing exactly 2 chemicals where ether, boson, and cyanide are at least 25% each in the chemical. In how many ways can he do the same? So this question, the information is provided in a table, but you will require logical and quantitative reasoning to solve this. So if Sheldon wants to make the chemicals by exactly mixing 2 chemicals, ठीक है, इन 5 में से कोई 2 केमिकल ही वो मिक्स करेगा, पर उसको ये इंश्योर करना है कि उसमें जो मिक्स होने के बाद जितना भी ईथर, बेजोन और साइनाइड होगा, that should be at least 25% in each of the chemical. तो कितने ways में he can mix 2 chemicals? How many unique 2 chemicals are there such that the condition is satisfied? That's the question. Can you solve? So what's the answer out of? Question is, in how many ways can you mix 2 chemicals such that the ether, boson, and cyanide composition is at least 25% in the mixture? Is at least 25% in the mixture. Like if you mix A and B, you see that the sum is only 45. 45 by 2 would be only 22.5. We need 25%. Mix होने के बाद जो average है वो 25% होना चाहिए. ठीक है, तो A B जो ऑप्शन था वो कैंसिल हो गया. फिर A C, ऐसे टोटल 10 ऑप्शन है, वो सारे चेक करने पड़ेंगे मैनुअली. A C, A D, A E, B C, B D, B E, C D, C E and D E. These are the 10 options. So A B तो कैंसिल हो गया. A C देखो 30 and 20 50. तो ऐसे देख लो, अगर 25 चाहिए तो एवरेज, अगर 25 चाहिए तो टोटल 50 के ऊपर होना चाहिए. 30 + 20 50, बेस ऑन 20 + 40 60 एंड दिस इज 50. सो AC के लिए सब कुछ सही है, मोर देन 50 है. ठीक है. नेक्स्ट A
डी चेक करो, 30 एंड 10 40, तो ये तो अभी आउट हो गया। जो एक चीज के लिए आउट हो जाते हैं उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। AE 30 40 करेक्ट है, 20 10 नहीं, आउट, ठीक है। नेक्स्ट BC 20 एंड 15 नो, BD 15 एंड 10 नो, BE 15 एंड 40 ये तो ठीक है, 15 एंड 10 नो, CD 30 नो, CE 40 तो ठीक है, 50 भी ठीक है, 40 नो, DE no. So the answer is only AC. Okay, the answer is only AC. That is one combination. Did you follow? There is only one way. Those who have answered it, great. Others, did you understand how to solve it? Now try the second one if you have got it. It is given in the table, no, Manish? It's given, no? This is A, B, C, D, E. How do we decide? Why do we have to decide which is A, B? दो केमिकल को मिक्स करने बोला है, तो देयर आर 5C2, दैट इज 10 ways to pick 2 chemicals out of 5, राइट? कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो 5 केमिकल से, दो के, तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको हमने एक एक करके चेक कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। किसका आंसर 9 होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने, आंसर है 1, सिर्फ AC कॉम्बिनेशन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। Very simple question, try to understand. Second question देखो. Now he wants to make a chemical by mixing exactly 2 chemicals with at most 25%. At most का क्या मतलब है? Maximum. पिछले केस में क्या लिया था? Minimum, at least. At most यानी कि maximum 25% ether, boson and cyanide होने चाहिए. तो फिर कितने तरीके हैं करने के? कितने तरीके हैं ये फॉर्म करने के, देखते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो है बिजोन और ईथर और साइनाइड वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 इंटू 2 कर दो, क्योंकि एक केमिकल दो केमिकल के लिए इंटू 2 यानी 50। कोई का भी जो टोटल है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए और सी के लिए क्या है, 20 + 40 कितना हो गया, 60। तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम 50 ही हो सकता है। तो ए सी इस बार कैंसिल हो जाएगा। व्हाट अबाउट ए बी? ए बी भी देखो, ए बी के लिए साइनाइड जो है वो काफी ज्यादा है 50 से, तो ए बी भी कैंसिल। 9 वेज तो रॉन्ग है, जो भी 9 बोल रहा है, ठीक है। एडी के लिए 50 40 ये भी 90 काफी ज्यादा है, नहीं। ए के लिए भी 40 30 70 हो गया, नहीं। बीसी के लिए, बीसी आई थिंक नहीं, हाँ ये करेक्ट है शायद ना, नहीं इसके लिए भी यहाँ पे ज्यादा हो गया, 40 + 15 is 55, नो। नेक्स्ट बीडी में भी ये ज्यादा हो गया, लास्ट वाला 35 एंड 50 इज सो मच हाई। बीई के लिए भी ज्यादा हो गया। टोटल देख रहे हैं हम लोग, टोटल 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कॉम्पोजिशन का, किसी भी कंपाउंड का। क्लियर हो गया जिनको डाउट आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में? इज इट क्लियर नाउ? ओके। CD, for CDC 40 + 30 70, no. For CE 20 + 40, no, greater than 50. And for DE also greater than 50, no. So the answer is 0 ways. ठीक है, answer is 0 ways. Diksha, because it is mentioned, no, at most 25% होना चाहिए. After mixing the two chemicals, they are saying that there should be at most 25% each of ether, boson and cyanide in the mixture. At most 25% का क्या मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जहां भी वैल्यू जो है वो 50 के ऊपर आ रही है, यानी कि उसमें तो 25 के ऊपर हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई वी वर जस्ट इग्नोरिंग दोस वैल्यूज। क्लियर? जिनको भी फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था, सेकंड क्वेश्चन से समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है? So they are talking about mixing exactly 2 chemicals. ठीक है? So since there is no mention, you have to take it like mixing equal proportions. These chemicals have fixed proportions of this
compounds you just have to mix them together, two chemicals, ठीक है, दो समझो कोई blocks है, ठीक है, इसका जो composition है वो fixed है, इसका जो composition है वो fixed है, अब उसको mix करोगे तो total composition जो हो रहा है, क्योंकि total फिर 200% में तो नहीं हो सकता ना, it have to be from 100%, so you have to add and take the average. या पर ये कहाँ लिखा है कि उसको 2:1 में मिक्स करो या कुछ भी, अगर लिखा है कि दो केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इट हाफ ऑफ, लाइक एग्जैक्टली मिक्सिंग टू केमिकल्स. 35 30 ठीक है, वी आर गेटिंग अलग अलग आंसर्स. व्हाट अबाउट अदर्स? Sheldon wants to mix two chemicals in such a manner that the added percentage of boson and lye is minimum in resulting chemical. What is the minimum percentage ether of the resulting chemical? No, 30 35 दोनों रॉन्ग है ना, 30 आंसर है ना 35 है. हाँ तो अलग अलग केमिकल तो है ना, मतलब A B C D E ये सारे अलग अलग केमिकल्स है. 20% is correct. Okay, those who have got it 20%, that is correct. Let's see how. तो ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये क्वेश्चन. Sheldon wants to mix two chemicals in such a manner that the added percentage of boson and lye is minimum in the resulting chemical. So in which case are we getting that? Mm, 2015. No, the least two values here are these two. बट देन उसके लिए फिर बेजोन बहुत ज़्यादा है, दोनों मिनिमम होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं ना, चेक करना पड़ेगा फिर तो, दोनों मिनिमम होने चाहिए. ठीक है, देखते हैं. ए बी का अगर लोगे फॉर ए बी it will be 35 by 2. Okay, I'm not writing by 2, we are just checking like that. जिसका भी चाहिए होगा उसका ही by 2 करेंगे. And 45. ठीक है, बेजोन एंड लाई. उसके बाद ए सी वो तो काफी ज्यादा है, वो तो देख के ही लग रहा है, ठीक है, लीव दैट. नेक्स्ट ए डी 20 and 30 50 और ये 10 10 ये कम है 20 and this is 50. फॉर ए अच्छा ए सी तो छोड़ दिया था ना, ए डी लिया है ना. ए ई A is 20 and 10 30 and 10 and 20 30. Okay, so अभी इन सब में से हम लोग देख सकते हैं AE is very less, right? It's 15 and 15. For AE, it's 15 and 15%. So that's the least till now. Let's check others. और कोई है क्या जिसका ऐसा कम हो? B, BC, no, that's definitely more than 15 and 15. B, D,
No, that's also more. BE is 25 by 2, that is only 12.5. 12.5% B zone. And no, but this is high. This is 55 by 2, 27.5. नहीं. और कोई है, और कोई कॉम्पोजिशन है? दिस वन 40 नहीं, ये तो ऑलरेडी इसी की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो नहीं आ सकता इससे मिनिमम. डी के बारे में, दिस इज 30 एंड 10, 20%, 20 and 15. For D and E, it's 20 and 15. ठीक है? So we can see that we have to go with this only then, A and E. और उसमें resulting ether का composition क्या है? Sorry, what was this? नहीं. A D में आ रहा है resulting composition सबसे कम. एक्चुअली इन्होंने साथ में ऐड कर रखा है. A D होगा आंसर. Sheldon wants to mix any two chemicals in such a manner that the percentage of boson and lye is minimum in the resulting chemical. हाँ, boson and lye की एडिंग करनी है, एडिंग करके निकालना है. Okay, we see Sheldon wants to mix two chemicals in such a manner that the added percentage of boson and lye, ये मिस कर दिया, added percentage बोल रहे हैं. The added percentage of boson and lye is minimum in the resulting chemical. We had to check the added percentage. Like 30, ठीक है, यहाँ पे added percentage है 30, यहाँ पे है 50. This is 40 and 30, 70. This is 40 and this is 30. Still it is A. But फिर उसमें minimum ether नहीं आ रहा है ना. What is the minimum percentage of ether in the resulting chemical? Minimum percentage of ether in the, उसको इस manner में mix करना है such that minimum percentage is, that's what minimum percentage is, AD. For ether, if you see, minimum percentage is for AD, it's 20% here, and that's the answer. Okay, though we are getting like, if you mix A and E, you will get the least 30%, but you see here, ether will be 35%. So that's not the minimum. We need the minimum percentage of ether. AE have a higher percentage of ether. So Sheldon wants to mix any two chemicals in such a manner that the added percentage of boson and lye is minimum in the resulting chemical. What is the minimum percentage of ether in the resulting chemical? BD ले सकते हो, क्या है BD का? अच्छा, पर फिर क्या उसका ये मिनिमम है? कैसे हो रहा है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है लग रहा है. Sheldon wants to mix any two chemicals in such a manner that the added percentage of boson and lye is minimum in the resulting chemical. What is the minimum percentage of ether in the resulting chemical? In BD, boson and lye is not minimum, it is 45. In this case, it's 30. And if you look at these two cases, that is AD and DE, it's the same. AD is 70 by 235
and DE is also 70/235. But इन दोनों में से इसका था 25% for ether and this is 20%. So therefore the answer is 20. ठीक है, क्वेश्चन में शायद कुछ तो गड़बड़ है. Yeah, those who got 20%, how did you get that? What did you consider? ठीक है, एक बार मैं ये चेक करके बता दूंगी कल. अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. Exactly two chemicals are mixed to make a chemical in which lye is 25% and cyanide is 30%. ठीक है, exactly इतना ही बनाना है. Exactly two chemicals are mixed in such a way to make in the resulting mixture lye is 25% and cyanide is 30. Then what is the Bezone percentage in the resulting mixture? That's the question. So we have to get 25% lye. For that we need the total 50. That is only possible with C and E. But cyanide will only be 20. Okay, what if you have to do only this part? Remove this. Exactly two chemicals are mixed to make a chemical in which lye is 25% and cyanide is 30%. Sorry, lye is 25%. Then what is Bezone percentage in the resulting mixture? Okay, maybe the question is wrong. There is no big deal. Okay, or just let it be. कुछ question में problem होगा. I'll figure it out. Okay, I'll let you know tomorrow. We can get 25%. No, now. This. Bezone विनेट. अच्छा. Okay. Okay. That's it then. हाँ ठीक है, कल देखेंगे. समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में. Question 3 will have maximum percentage of cyanide. Okay, so those who have solved it did it like that. Sheldon wants to mix any two chemicals in such a manner that the percentage of added Bezone and lye is minimum in the resulting mixture. Also, you need the minimum percentage of ether. अगर इन तीनों का मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम साइनाइड चेक किया है उन्होंने, जिनका थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आया है. मैक्सिमम साइनाइड चेक किया तो मैक्सिमम साइनाइड है इस दोनों के कॉम्पोजिशन में. वो हटा दिया तो मिनिमम वैल्यू मिल गई. दैट्स हाउ वी गॉट 20%. ठीक है, so that's it. Then we'll stop here. Tomorrow we will see one question on Venn diagram. ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था. In this already the Venn diagram is given and then there are some information that you need to solve. And another question I think we'll see on sitting arrangement plus this one. Hridam, I've told you, please text me on the learning app. I'll help you out.
अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस करेक्ट, लेट्स सी। हाँ, मॉक का लिंक मैं दे देती हूँ एक बार। तो देखो, ये जो चीज़ है वो फिक्स नहीं है। 99 परसेंटाइल आपका आराम से आ जाएगा अगर आप 18 क्वेश्चंस राइट कर देते हो आउट ऑफ 20। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलते रहती हूँ, कीप योर टारगेट एज 5+ सेट्स। ओके, ट्राई टू सॉल्व 5+ सेट्स इन 1 आवर। बता रही हूँ, ठीक है, प्लस का भी बता देती हूँ, 1 मिनट। तो 5+ सेट्स का टारगेट होना चाहिए। पर अगर मैं आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, तो 2017 का जो पेपर था, अगर आपने वो देखा है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। वो पेपर ऐसा था कि उसमें सिर्फ 11 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस करेक्ट थे, मेरे खुद के मैं बता रही हूँ। एंड आई हैड गॉट 98.29 परसेंटाइल। ठीक है, ये कभी कभी होता है, ठीक है, वरना इतने 3 सेट्स के अंदर आपको कभी 98 परसेंटाइल नहीं आ सकता। So ये like वो पेपर जो था 2017 का, that is believed to be the toughest paper of in the history of CAT, you can say। इसीलिए उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट था, तो सब लोग एक दो सेट्स ही कर पाए कि 3 सेट करने वाले 98 परसेंटाइल हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये रिलेटिव है, क्योंकि हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं और परसेंटेज की नहीं। तो ये पूरा जो गेम है इट्स रिलेटिव। ठीक है, अब 2018 में क्या हुआ? 2018 I had 19 out of 20 correct. So my score was 99.59 percentile। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ, मतलब 20 क्वेश्चंस। और ये जो 2018 का पेपर था, वो भी मतलब मॉडरेट लेवल का था, बोल सकते हो। 2017 जितना टफ तो बिल्कुल नहीं था, पर इजी भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मल पेपर था। और अगर 2019 की बात करें, तो 2019 में स्लॉट 1 पेपर जो था वो बहुत इजी था। बहुत इजी था कंपैरेटिवली। आप किसी से भी कंपेयर कर लो पास्ट कुछ ईयर से, और स्लॉट 2 से भी कंपेयर करोगे तो स्लॉट 1 वाज वेरी इजी। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, आई अटेम्प्टेड 26 क्वेश्चंस देयर, but I don't remember the exact correct attempts. Though I had 60 as my total score. I don't remember the exact correct attempts, but I had 60 as the total score, which was scaled down to 55। ठीक है, इसको स्केल डाउन किया गया और फिर परसेंटाइल अलॉट की गई। क्योंकि क्यों स्केल डाउन किया गया? क्योंकि पेपर 2 लेवल्स के थे ना। अगर ऐसा होता है किसी भी एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता कि जिनका इजी था उनका ज्यादा फायदा हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। व्हाट दे डू इज, वो लोग स्केल डाउन कर देते हैं मार्क्स को। ठीक है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट पेपर भी आया है तो चिंता मत करो, जिनका इजी आया है उन लोग का स्कोर जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक पूरा सेट एक्चुअली मेरा आई थिंक इनकरेक्ट हो गया था हड़बड़ में, क्योंकि आई ट्राइड टू सॉल्व टू मेनी। 26 क्वेश्चन का मतलब है 6.5 सेट्स। तो एक पूरा सेट जो है वो रॉन्ग हो गया था यहाँ पे। इट वाज क्वाइट इजी, बट इट जस्ट मेस्ड अप बिकॉज ऑफ टाइमिंग। आई ट्राइड टू जस्ट डू टू मच। ठीक है, सो जैसा कि वही है, तो इट इट डिपेंड्स। कुछ कुछ बोला नहीं जा सकता। तो 55 आई थिंक आपका यहाँ पे भी 5 सेट्स के आसपास से इतना आ जाता है ना। तो वो जबरदस्ती कि एक सेट अगर रॉन्ग होता है, यानी कि 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, तो -4 भी तो हुआ। तो यानी कि वो अल्टीमेटली 5 सेट सॉल्व करने जैसा ही बात हो गया यहाँ पे। हाँ, वही माइनस हो गया होगा, तो इसलिए 5 सेट सॉल्व करने जैसी बात ही हो गई ये भी। तो इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ 5+ सेट का टारगेट रखो। 5 अगर आप क्रॉस कर लोगे विद 80%, सॉरी 90% एक्यूरेसी, 99% कहीं नहीं जा रहे, 99% टाइप। और पेपर डिफिकल्ट आया तब तो कम में भी हो सकता है। पर हमें नहीं पता ना पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। वो एग्जाम में घुसते वक्त पता नहीं होगा, वो कब पता चलेगा? पेपर सॉल्व करते वक्त भी नहीं पता लगेगा। मे बी थोड़ा सा पता लगे डिफिकल्ट है, पर मे बी वो आपके लिए डिफिकल्ट है, बाहर इजी हो, यू डोंट नो। सो ओवरऑल मतलब पेपर इजी या डिफिकल्ट था वो सब पे डिपेंड कर रहा है। तो वो फिर आपको वो एग्जाम के बाहर आके ही पता चलेगा। तो एग्जाम के अंदर क्या करना है, 5+ सेट्स का टारगेट रखना है। ठीक है, और ये सिर्फ टारगेट रखने से नहीं होगा, इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू प्लान फॉर इट। अगर आपको 5+ सेट्स 1 आवर में कर पाना है, इट इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट यू विल हैव टू प्लान फॉर इट, you'll have to work for it। ठीक है, every day। So every day while you prepare, every day while you practice, you have to like have a plan। ठीक है, बिना प्लान के नहीं होगा।
Best source you can refer to PYQs. You can refer to PYQs for DI especially. ठीक है, पास्ट ईयर जो 1990 से स्टार्ट होते हुए पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2008 तक. उसमें मेनली क्या होता था, मेनली जो है DI आते थे. ठीक है, वो सबसे बेस्ट सोर्स है फॉर DI का प्रैक्टिस एटलीस्ट. ठीक है, उसके बाद तो मॉक्स ही है. देखो, अगर बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं तो मॉक्स, कोई ना कोई मॉक ले लो एक. ठीक है, अनअकैडमी का सिर्फ मॉक तो आता नहीं है, तो कोई भी एक मॉक आप अपने फ्रेंड्स लोग से डिस्कस कर लो जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है. LR में इशू आएगा तो वही है, एक ही सोल्यूशन है इसका, प्रैक्टिस. ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको सिखा दूं और आपसे क्वेश्चन होने लग जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है. या आई नो, आई कीप टेलिंग दैट DI इज मच मोर इजियर, है ना. DI में क्या होता है, तो ये काफी बार मैंने बताया होगा. LR में पैसेज दिया होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं. DI में ऑलरेडी नीटली अरेंज डेटा दिया होता है, वहां से सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं. सो DI इज मोर इजी देन LR. I keep telling that, but personally I prefer going for LR first. ठीक है, पहले मैं LR सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद DI. ऑब्वियसली अगर मैं 5-6 सेट सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें ऑब्वियसली DI के क्वेश्चंस कवर करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, उसको पूरा इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, पर पहले पहले लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड, पजल सॉल्विंग हैव ऑलवेज बीन माय फोर्टे. मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया है DILR के लिए, पर एक होता है ना, लाइक बचपन से ही पजल्स वजल्स में काफी दिमाग चलता था, तो वही. Yes, Anand, I'm so sorry for that. I'll start it. Okay, I'll start it from Monday for sure. ठीक है, I'll inform you once it's done. Okay, और क्या, और कुछ जानना था, किसी को क्या पूछा था? देखो, कुछ भी इशू आ रहा है, सोल्यूशन एक ही है. प्रॉब्लम कुछ भी है आपका, सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, बीच में अटक रहे हो, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो एक ही है, वो है ये. ठीक है, ये जब तक प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. और प्रैक्टिस जिनसे सॉल्व नहीं हो पाते, उनको कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, एलिमेंट्री लेवल से, बिल्कुल सिंपल पजल से, बिल्कुल क्या बोलते हैं, बैंक लेवल के क्वेश्चन उठा लो, गूगल कर लो, वो सॉल्व करो पहले. ठीक है, वो जब सॉल्व होने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, धीरे 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 उससे ना काफी कुछ सीख सकते हैं. लाइक छोटे छोटे इजी क्वेश्चन से क्या होता है, हम लोग एनालिसिस करना सीखते हैं. Okay, and that ultimately helps us in a difficult question. So this is the way you start with elementary questions, though those questions are not going to come, but it's not possible कि आप एक बार में CAT level का solve करने लग जाओ. It's not possible because ये ऐसा subject है, we have never had it in our academics or nowhere else. We just have to do this, right? We just have to figure it out. प्लस में रोज देखो, रोज तो क्लासेस तो चलती रहती है. जैसे अब पिछले महीने जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल कोर्स किया था, है ना, टॉपिक वाइज जो कोर्स कंप्लीट किया था, उनके लिए इस महीने प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है सुबह. तो वो सिर्फ मैं MWF को चला रही हूँ क्योंकि काफी क्लासेस हो जाती है, फिर उनके लिए भी और भी क्लासेस हैं. ठीक है, वो उन लोग वापस से कॉन्सेप्चुअल कोर्स भी अटेंड कर पा रहे हैं, जो कि आज से स्टार्ट होगा. आज से एक बैच स्टार्ट है 9 to 10:30 PM को, उसमें पूरा बेसिक से कवर करेंगे LRDI. एक और बैच स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू डिमांड. कुछ लोग ये टाइमिंग से कंफर्टेबल नहीं थे, तो उनके लिए एक और बैच स्टार्ट है 11 मई से, और उसका टाइमिंग रहेगा 4:30 to 6. इसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे. तो जिन्होंने पिछले महीने कॉन्सेप्चुअल कोर्स कर लिया है पर उसमें भी अभी भी जैसे है कुछ डाउट्स है वो क्लियर नहीं हुए, तो वो लोग भी वापस ये कोर्सेज अटेंड कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस जो है पूरा चेंज कर रही हूँ. ठीक है, तो इस तरह से क्लासेस का वो नहीं है, बट हाँ आपको खुद ही फिक्स करने होंगे क्लासेस, क्योंकि पूरा दिन क्लासेस देखते रहोगे, क्लासेस तो पूरे दिन चलते रहते हैं, पूरे दिन देखते रहोगे तो फिर सेल्फ प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस ऑल्सो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासेस देखने का, क्लासेस अटेंड करने का मतलब है इनपुट लेना. तो सिर्फ इनपुट लेते रहोगे तो नहीं होगा. यू हैव टू ऑल्सो आउटपुट इट, यू ऑल्सो हैव टू आउटपुट इट इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, तो जैसे ट्राई करो कि अगर 2 आवर्स की क्लासेस ले लिया, 2 आवर्स क्वांट, VARC और DILR के क्लासेस कर लिया, और 1 आवर प्रैक्टिस कर लिया, सेल्फ प्रैक्टिस, इस टाइप से. जब 2 या 3 केसेस बनते हैं LR में, बहुत टाइम लग जाता है.
तो उस टाइप के क्वेश्चंस, 2-3 केसेस वाले क्वेश्चंस, आई डोंट रिमेम्बर कि अभी मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन रिसेंटली देखा गया है पास्ट ईयर में जिसमें 2-3 केसेस बन रहे हो। और अगर ऐसा होता है, डेफिनेटली एक क्लू दिया होता है जो कि किसी ना किसी केस को रूल आउट कर देता है, एंड फाइनली एक केस ही मिलता है। फाइनली अगर स्टार्टिंग में 1-2 केसेस हो भी तो लास्ट में एक ही केस हो जाता है, कोई ना कोई क्लू ऐसा रहता है। अभी 2 सेट्स पर डे से स्टार्ट कर सकते हो, इवेंचुअली लाइक आफ्टर अ मंथ यू कैन, व्हेन यू आर हैबिचुएटेड, तो क्या होगा कि 2 सेट में अभी अगर 1 घंटा लग रहा है तो वो धीरे-धीरे वो टाइमिंग जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो मेरा कहना है कि आप सेट्स पे मत टिको, आप टाइमिंग पे टिको। टाइमिंग रखो कि 1 घंटा मुझे रोज प्रैक्टिस करना है, बस, ठीक है? अब इस 1 घंटे के अंदर ही आपको क्या करना है, अभी अगर आप 1 घंटे के अंदर 2 सेट्स कर पा रहे हो, तो धीरे-धीरे इसी 1 घंटे के अंदर जो है टारगेट्स इंक्रीज करते जाओ। कहाँ पे जाना है हमें? 5 सेट्स तक। तो हमें हमारा टारगेट पता है, पर इवेंचुअली हम इस तक मूव करेंगे। तो हम ये सेट्स किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? हमारे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि धीरे-धीरे बढ़ते चली जाएगी। ठीक है? 1 आवर, वही 1 आवर जिसमें अभी हम 2 सेट्स अगर कर पा रहे हैं, उसी 1 आवर में हमें 5 सेट्स कर पाने हैं, ये हमारा टारगेट है। तो इसीलिए सेट्स मत फिक्स करो, फिक्स द टाइम। ठीक है? ठीक है, अभी डन, क्लास बंद करेंगे अब। ठीक है, आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 9। अब बाकी जो भी डाउट्स है वो कल पूछ लेना। ठीक है, बाय। Okay, if you're taking the subscription, don't forget to use my code for guidance throughout your CAT exam. This is my referral code. Okay. Thank you. All the best. और कल सुबह का टेस्ट मत भूलना। ओके, राइट द टेस्ट टुमारो मॉर्निंग, इवन इफ आपको लगता है कि यू आर नॉट एट द राइट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तो भी लिखो, है ना? यूल गेट टू नो कि कहाँ पे वीकनेस है, कौन से पॉइंट्स में, और कहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है। So I'll provide you the test link. So the ID that the referral code that you see on the board is also my Telegram ID. You can message me there. Okay. ठीक है, एक बार टेस्ट आप एक बार खोल के देख लेना, ऐप पे आपको फ्री टेस्ट में मिल जाएगा वो। All right, bye.